अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हम गुफ्तगू करेंगे अमरीका की सियासत पर। घबराओ ना, ये डांस इन्हें कई ड्रामे च कीता होया है। ट्रंप साहब क्यों नच रहे हो? प्राइज बाउंड लगा या पोतरा आया तुहाडे हल? ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਕਰ ਡਾਂਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਡਾਂਸ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 50 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਛੱਡ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਖਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। बड़ा रिलीफ मिल गया आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब। ਮੈਂ ਨਾ ਲੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਖਾਲਫਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਨਾਅਹਲ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪੂ ਲੜੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਕੈਸਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਮਰਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਵਾ ਟਾਵਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਟ ਅੱਧੂ ਏ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੱਤੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੱਤੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਠੂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪੂ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਹਾਲਾਲਾ ਕਰਤੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਲ ਹੈ। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप कुछ भी कह लीजिए, 19 दिसंबर को कोलोराडो की अदालत ने आपको कैपिटल हिल पर हमले के जुर्म में सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार दिया था। तो मिशिगन की अदालत में भी इसी तरह की दरख्वास्त दायर की गई और अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार चुकी अदालत को कायल करने में नाकाम रहा, इसलिए आपको इजाजत मिली प्राइमरी लड़ने के लिए। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਜੇ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਦਾ ਐਂਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤੂੰ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹਨ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? कोलोराडो की अदालत ने यह फैसला दिया आपको नाअहल करने का। ਛੱਡ ਕਰਨਾਲੋ ਨੂੰ, क्यों? ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵੇਖ। एक ने नाअहल किया, दूसरे ने इजाजत दी। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 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 ਸਾਦੀ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸ ਖੋਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਦੀ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਟੱਪ ਲਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਟਰੰਪੂ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਜਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ, ट्रंपू आ गया मैदान बिच ए जमालो। किसने कहा? किसने कहा? इसने सर। ये अकेला बोले तो 7 आदमियों की आवाज आती है। सर मैं कह ही नहीं सकता, मैं तो डोगर हूँ। तुमने कहा अजमा लो? नो सर, मैं तो कह ही नहीं सकता, मैं तो गूंगा हूँ। किसने कहा? तुमने कहा? नहीं जी, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਮਰੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ नहीं। कोई भी इसके पीछे है जमालो नहीं कहेगा। अगर मैदान में खुद आया तो खुद ही कहेगा जमालो। वो तेरे 4 बंदे ना है जमालो कहणगे ते की अमरीका बाकी सौ गए आ। ये अमरीका जागदा।
अमरीका ट्रंपू दे मगर है हे जमालो कहण वास्ते। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको अपनी हे जमालों से गर्ज है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि अमेरिका का क्या बनेगा। हाँ। अमरीका दा बनाना ही मैं आ जो बनाना। आ बेस सही तू पुत, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੌਫ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪੂ ਐਸਾ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪੂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਲਟਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੇਜਰਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆ यूक्रेन ते रूस की जंग भी ट्रंपू ते पा देण, बल्कि ये ते हले अजकल की गल है ताजा, इन्होंने तो दूसरी जंगे अजीम भी ट्रंपू ते पा देनी। मगर आपके ऊपर इल्जाम तो है ना टैक्स फ्रॉड का, आपके ऊपर इल्जाम तो है कि आपने अपने हामियों के जरिए कैपिटल हिल पर हमला करवाया। पुत इल्जामात ते नवाज शरीफ ते भी बड़े सन, अगला सारे क्लीयर करके ते हुण लाइट ब्लू जैकेट पा के बैठा हुंदा ना पार्लीमानी इजलास विच। ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਚ ਮੁੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਣਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਣਾ ਮੀਂਹ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਡੂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, सदारती मुबाहिसे में कब आ रहे हैं जो बाइडन के सामने? ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਵੇ ਮੁਬਾਹਿਸਾ। ਇਹ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, एक फिकरा पूरा बोल नहीं सकता, बिच खंघदा 2 वारी। और तू जो मर्जी कर ले, यू माइंड इट, तेरे सामने एक पहाड़ खड़ा है। देखो ना जरा, ये केड़ा पहाड़ है जेड़ा थोड़ी जी हवा चले ते डिग पैंदा। बाबा तू जेड़ा पहाड़ है ना, तेरे वर्गी फोटो होम्योपैथिक दी दवाई ते बनी हुंदी आ। तेरे सिर ते मलिया हुआ ना तारे मीरे दा तेल, तेरी चीखां निकल जान। ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਰ, ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਸਾਹ ਲਵੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਸਿਧਾਰਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਬੜਨ ਡੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਰੰਪੂ ਵਰਗਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਧਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ऐसी बात नहीं है, जो बाइडन साहब डेली 10-15 फुट मॉर्निंग वॉक करते हैं। पता पुत, ये जेड़ा बेड तो उठ के कंबोर्ड तक जांदा वो 15 फुट तू दसन डे आ। ते किसी दिन खबर आ जानी बेड से कंबोर्ड की तरफ जाते हुए गिर पड़े। तू ते है ही मनूस। रीस साहब ये भाई होया जे जिन्हें क्रिसमस वर्गे खुशी दे मौके ते भी बाइडन भाई नूं गल्लां कीतियां ने। पुत मैं क्रिसमस ते सच बोलिया, मैं ही क्या ना तरीख च अमरीका दे तरीख दे विच ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫਰਾਡੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਪਟ ਸਦਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟਾਫੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਫੀਆਂ ਖੋਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਜੋਸਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਚੱਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੂਸੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੀ ਨਾ ਟਾਫੀਆਂ। कंजिंगर ने सही कहा, 16 आने गल की थी उन्हें। फरीद साहब उसने कहा कि ट्रंप के पास मास्क लगा के जाओ क्योंकि ये बदबूदार आदमी है। चल कंजिंगर केड़ा कब्रिस्तान च अगरबत्तियां बेचदा या गड्डी च चढ़ के अतर बेचदा। पहली बारी जराबां उन्होंने मैं लैके दित्तियां सन, मैं अंगूठे वाल वेख्या ते अंगूठा खुद कहन दिया ही भाई जी मैनू टक्को। मैं फिर जराबां लैके दित्तियां। पुछी अपने कंजिंगर नूं जिन्हों हुण मेरे कोलों बदबू आउण लग पई आ। खुद तैनूं ते पता मैं ते कलमां च डिचकूं करदा रहा। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਜਿੰਗਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਕੰਜਿੰਗਰ ਪੁੱਤ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਾਡੀਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੰਜਿੰਗਰ 2 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡੋਂ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਆ। और फिर बेरोजगार है अजकल। मेरे खिलाफ गल्लां करके लोगों को पैसे लैंदा। जिवें पिंड च नहीं बदतमीज बच्चे नूं बाबे रुपया देंदे जा उन्होंने गालां कढ के आ, यो बदतमीज बच्चा। मगर ट्रंप साहब किंजिंगर ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है आपके खिलाफ
उसने लोगों में बहुत तवज्जो हासिल की है। ਉਹ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਿੰਗਰ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖ ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਤਖਾਂ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਛੱਡ ਤੇ ਇਸ ਕੰਜਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ। फरीद साहब, जो शख्स भी इसके मुतालिक सच बोलता ना, ये उसके खिलाफ हो जाता है। हालांकि कंजिंगर इतना नाइस मैन है, अक्सर उसकी और मेरी मुलाकात नेशनल लाइब्रेरी में होती है। ਓ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਤੂਬ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਏ। हमारा का मतलब कि मैं लाइब्रेरी नहीं जाता। लोग मेरी दानश्वरी की ऐसे नहीं तारीफें करते। सारी जिंदगी गया हूं मैं लाइब्रेरी। फरीद साहब, उसकी कंटीन के पकौड़े मुझे इतने पसंद हैं। पकौड़ों को भी छोड़ दें, जो वहां की चटनी जो मुफ्त मिलती है ना, ओ हो फरीद साहब, मेरे पास पैसे ना भी होना, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, वहां से चटनी पीकर वापस आ जाता हूँ। कानून हाथ में नहीं लेता मैं कभी, मगर लाइब्रेरी जाना नहीं छोड़ा। इदा को मैं कदी मुफ्त चटनी नहीं छड़ी। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਹਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੰਪ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ट्रंपू पिछे लेना लगे हैं, एडा तू न्याज दी देग बनने हैं। गुरबत नहीं इन्ना च निकलनी। ये दोवें वो शख्स होया ना, वाइट हाउस भी इन्ना फर्शी बिस्तरा ही कीता। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਵੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈੱਡ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਰਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਚਟਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ, ਨੌਕਰਾਂ ਆ ਕੇ ਰਾਤੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਚ ਸੌਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ। ओए शोखिया, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, और हमारे गोगे का कौल है, रज्जे की एक दिन की जिंदगी भूखे की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। इसीलिए गोगा अपनी जिंदगी का हर खाना आखिरी समझ के खाता है। अच्छा जी, आज अगर उम्मत मुस्लिमा के हालात पर नजर डालें तो हमें बेशतर यही नजर आता है कि उनमें ना ही दिलेरी है, ना ही पुख्ता यकीन, ना ही इत्तेहाद और यगानगत है जी, बल्कि ये तमाम वो चीजें ऐसी हैं जो कभी मुसलमानों का शेवा हुआ करती थी, हाँ लेकिन आज बदकिस्मती से हमें ये कहीं भी नजर नहीं आती है। अच्छा, ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे अगर आप ना जाएं, कुछ ही अरसा पहले बर्रे सगीर पाक हिंद की अगर हम बात करें जी जी, तो वहां बहादुरी और दिलेरी का एक ही इस्तिआरा था, एक ही रोशन सितारा था, और उसका नाम था शेर मैसूर टीपू सुल्तान। खुश आमदीद शेर मैसूर टीपू सुल्तान, हम आज तक आपको याद करते हैं जनाब। हर इंसान के पास जिंदगी गुजारने के दो रास्ते होते हैं, एक जिंदा रहने के लिए जिंदगी गुजारना, और दूसरा तारीख में जिंदा रहने के लिए जिंदगी गुजारना। वाह, सारी जिंदगी मैंने जंग में गुजार दी, बेशुमार मार के सर किए, लातादाद महाजों पर दुश्मन के दांत खट्टे किए, लेकिन मुजाल है जो एक लम्हे के लिए भी कभी मौत का खौफ
अपने ऊपर गालिब आने दिया हो। वाह। कई बार वाज़े और यकीनी मौत फन फैलाए मेरे सामने खड़ी नजर आई, लेकिन पुख्ता इरादे और कामिल यकीन को मैंने अपने से दूर नहीं होने दिया, बल्कि हमेशा मौत की आंखों में आंखें डाल के जिंदगी गुजारी। क्या कहने। रोजे अव्वल से ये तय कर लिया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर। वाह 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 वाह। ਇਹਦਾ मतलब है थैले तू ते 100 साल होर जिंदा रहेगा। शेर मैसूर, आपका तो कौल है ना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, और हमारे गोगे का कौल है रज्जे की एक दिन की जिंदगी भूखे की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। इसीलिए गोगा अपनी जिंदगी का हर खाना आखिरी समझ के खाता है। और शेरे मैसूर, इसने कभी दस्तरखान के मुहाज पे कभी शिकस्त नहीं खाई। ओए अकल कर, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗੜ ਨਹੀਂ ਭਜਾਈਦਾ। टीपू साहब, हम तो आपके बहादुरी के किस्से बचपन में मुताला पाकिस्तान की किताबों में पढ़ते रहे हैं। जी। मैं तो कई दफा तकिए के दरमियान से रुई निकालकर तकिए को सर पे रख के टीपू सुल्तान बनने की प्रैक्टिस भी करता रहा हूं। और फिर अचानक काकरोच आता था तो इसकी चीखें निकल जाती थी। ओ मियां, अंदर से बुज़दिल आदमी गेटअप करके टीपू सुल्तान नहीं बन सकता। टीपू बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की बुज़दिली को मारना पड़ता है। क्या कहने। जहां जुल्म देखो वहां डट जाओ, जैसे मैं डट गया था। इस बात की परवाह नहीं की कि अंग्रेज कितने ताकतवर हैं। मैंने उन्हें सारी जिंदगी नाको चने चबवाए। अब तो नाको चने नहीं, सिर्फ नान चने का दौर आ गया। नान चने खाओ और सारा दिन लाश बन के लेटे रहो। टीपू साहब, गोगा ते रज के रोटी खावे ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਫੇਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तुम तो मेरे से इसलिए जेलस हो कि तुम पर 2 मक्खियां बैठ जाएं तो तेरी जगह खत्म हो जाती। शेर मैसूर, आपने तो बहादुरी की वो मिसालें कायम की जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल। याद रहने के लिए सिर्फ बहादुरी ही काफी नहीं, अपने अंदर की सलाहियत को जानना भी जरूरी है। वाह 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 वाह। मैंने सिर्फ बातूनी नहीं अमली जिंदगी गुजारी है। दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने का ही नहीं सोचा, बल्कि जदीद हथियार बनाए, मुकम्मल जंगी सलाहियत हासिल की। मगर अफसोस, आज हम हाथ पांव हिलाने की बजाय सिर्फ जुबान हिलाकर दुश्मन को जेर करना चाहते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। सुन रहे हो गोगे, बहादुरी के साथ साथ जदीद हथियार होना भी जरूरी है। मैंने तुझे 36 दफा कहा है, जंग लड़ते हुए छुरी, कांटा, चम्मच भी इस्तेमाल किया करो। तुम हाथों से शुरू हुए होते हो। और जाहिलों, उनका मतलब ये है कि हर मैदान में सलाहियत हासिल करनी चाहिए। जी। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली, जो खुद तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने आपको इस्लामी तालीमात के साथ साथ अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी, तामिल और उर्दू की तालीम दिलवाई, और आपने इन पर उबूर हासिल किया। क्या कहने। उनका यह कहना था कि मुख्तलिफ उलूम सीखना, मुख्तलिफ जुबानें सीखना दिमाग को वुसअत देता है, और जंग दिमागी हिकमत अमली से जीती जाती है, और बहादुरी उस पे सोने पे सुहागा है। वाह। क्या बात है जी, जुबानों पे तो गोगे को भी बड़ा अबूर हासिल है। हर नाश्ते में खद खाता है और मुख्तलिफ जुबानों पे अबूर हासिल करने के लिए मुख्तलिफ खद्दे खाता है। कभी दुम्बे की, कभी बकरे की, कभी छतरे की, और आधी आधी खद्दे अपनी भी खा गया दांतों के नीचे लेके। तुम लोगों ने मेरा ये फिक्रा तो रट लिया
कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, लेकिन ये ना देखा कि शेर बना कैसे जाता है। हुजूर शेर बनना केड़ा मुश्किल है, नून लीग ज्वाइन करो तो बंदा शेर बन जाता है। हुजूर ये सिर्फ जुगतों के महाज पर ही लड़ सकते हैं। हाय। इनके कहने का मतलब ये है कि शेर बनने के लिए दीगर सलाहियतों का होना भी बहुत जरूरी है। हाँ। आप लोगों को मालूम है कि टीपू सुल्तान को बर्रे सगीर में रॉकेट साजी का मौजिद कहा जाता है। नासा ने इनको रॉकेट मैन के हवाले से याद किया है। अच्छा। और भारतीय सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक मौके पर यह कहा कि मुझे लिखते हुए खुशी हो रही है कि नासा हिंदुस्तान के बादशाह टीपू सुल्तान को रॉकेट मैन के नाम से याद कर रहा है। मेरे एक कॉल के अलावा मेरी जिंदगी पे भी नजर डालो, अगर दिलों में जिंदा रहना है तो, वाह। वरना मर तो सब ने जाना है। वाह। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कहते हैं जी कि मौलाना इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो भाई भागने का भी कोई माहौल होता है। भागने के लिए जॉगर बड़े जरूरी होते हैं, निगर शर्ट बड़ी जरूरी होती है, और फिर ठा की आवाज से पहले दोनों हाथ जमीन पे रख के घुटना जमीन पे लगा के अकड़ू बैठना पड़ता है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है और इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आपने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्क में इलेक्शन के माहौल के साजगार होने पर सवालिया निशान उठा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है JUI का कारकुन पैदा। देखिए, बात यह है कि हमें हमारे कारकुन बड़े कीमती है, बड़े प्यारे हैं। जी जी हम किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे और ना ही बर्दाश्त करेंगे। सही। हमने ये कह दिया है कि माहौल साजगार नहीं है। एक तो सर्दी और दूसरा ऊपर से माहौल भी ठीक नहीं है। दहशत गर्दी का खतरा है, माहौल बड़ा खराब है। मौलाना साहब, और तो कोई एतराज नहीं कर रहा साजगार माहौल के हवाले से। तारीख फाइनल हो गई, कागजात नामजदगी जमा हो गए, जांच पड़ताल हो गई, उम्मीदवार फाइनल हो गए, अब आप साजगार माहौल पर सवाल उठा रहे हैं। फरीद रईस साहब, यहाँ जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आप जाके सारा दिन गैस के सिलेंडर बेचते हैं। क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? आपको मालूम नहीं है? ये तो बात सारी सामने आ चुकी है। इंतजामिया ने हमें बाकायदा नोटिस भेजे है कि एहतियात कीजिए, बाहर मत निकलिए। तो हमने अगर इलेक्शन की मुहिम के लिए बाहर निकलना है और इंतजामिया हमें बाहर निकलते हुए खबरदार कर रही है, तो हम किस तरह मुहिम चलाएंगे? ये मुहिम चलानी है, कोई ट्रैक्टर नहीं चलाना जो ऊपर बैठे तो स्टार्ट करके तो उसको खींच के तो शुरू हो जाए। मौलाना साहब, आपकी इस बात में तो वजन है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर माहौल नहीं है तो फिर आप इलेक्शन मुहिम चलाएंगे कैसे? वही तो बात कर रहा हूँ। देखिए, बात यह है गल तो सियानी कर देने कि हर चीज का एक माहौल होता है गौरी साहब। जी जी अब एक चीज का माहौल ही ना हो तो वो आप वो कैसे कर सकते हैं? अब आप जून जुलाई की कड़कती धूप में बैठ के गरम गरम पकौड़े तो नहीं खा सकते, या आप सर्दियों की आधी रात में रजाई के अंदर घुस के माल्टे तो नहीं खा सकते। इसी तरह गरम गरम पकौड़े खाने के लिए बारिश और सर्दी बड़ी जरूरी होती है। अब इस माहौल में इलेक्शन करवाना तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप फौतगी वाले घर में पूड़ी पे बैठ के लतीफा सुनाना शुरू कर दो। भाई, माल्टे खाने के लिए धूप में बैठना पड़ता है और पकौड़े खाने के लिए बारिश और सर्दी जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक माहौल नहीं बनेगा उस वक्त तक इलेक्शन हरगिज़ नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब खुद कह दिया था कि अभी इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, तो फिर क्यों करवाए जा रहे हैं जबरदस्ती?
ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। अगर उन्होंने इलेक्शन भी नहीं करवाना तो फिर PSL के मैच उनके सुपुर्द कर दिए जाए। तो इसलिए मेरा भाई मैं समझता हूँ कि आप पहले इसका माहौल बनाए, उसके बाद जब आप कहेंगे तो जरूर इलेक्शन होंगे। अब अगर ऐसी बात की जाए माहौल की तो कहते हैं जी कि मौलाना इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो भाई भागने का भी कोई माहौल होता है। भागने के लिए जॉगर बड़े जरूरी होते हैं, निगर शर्ट बड़ी जरूरी होती है, और फिर ठा की आवाज से पहले दोनों हाथ जमीन पे रख के घुटना जमीन पे लगा के अकड़ू बैठना पड़ता है। बदा खुदा कुर्सी पे बैठ के कैसे भागा जा सकता। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी माहौल नहीं है, इल्तजामिया हमें खबरदार कर रही है बाहर निकलते हुए। तो अब इलेक्शन मुहिम कैसे चलाए? छत वाले पंखे के साथ बांध के चला दें। जी मौलाना साहब, आपकी इस बात में वजन तो है। इंतजामिया ने आपको इलेक्शन मुहिम में बाहर ना निकलने पर नोटिस जारी किया है, लेकिन दूसरी तरफ इंतखाबी अमल का तो आगाज हो गया है। कागजात नामजदगी जमा हो गए, आपने खुद 2 हल्कों से कागजात जमा करवाए हैं। तो फिर ऐसे मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो की है, आखिर कहना क्या चाहते हैं? अरे तुम जैसे जो लड़के होते हैं ना, वो दफ्तर जा रहे हो तो बेगम आवाज देती है, बेशक दफ्तर से लेट हो रहे हो, प्याज और लहसुन तुम नहीं छील के जाना। बात आप समझ नहीं रहे, आप फिर पकड़ के तो दरवाजे से खींच रहे हो। बात यह है कि जब जबरदस्ती इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो हमने तो हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा तो ले ली है। जी बिल्कुल। इसलिए कागजात तो बिल्कुल हमने भी जमा करवाए। मगर दूसरी तरफ जो खतरा हमें नजर आ रहा है, जो हमारे रिजर्वेशंस है, उसके मुतालिक आगाह करना तो हमारा फर्ज है ना। अब जब इंतजामिया हमको डरा रही है और हमें नोटिस भेज रही है कि भाई बाहर खतरा है, इस वक्त इंतखाबी मुहिम चलाना हमारे इलाके में ठीक नहीं है, तो फिर उसके मुतालिक किसको बताए? सही, आप बता देना, किसको बताए? जाके हकीम साहब को बताए, उनको नोटिस दिखा के कहे कि इसके हवाले से कोई माजूल दे दे हमें। मौलाना साहब, हकीम साहब को बिल्कुल भी ना बताएं, लेकिन आप बताएं तब जब आपकी आवाज पर कान भी धरा जाए, जब आपके इस कहने के ऊपर इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। इलेक्शन तो होना ही 8 फरवरी को है। देखे, जब हम चाहते हैं ना कि हमारी आवाज पे कान धरा जाए तो हम मुंह मोड़ के अपनी तरफ कर लेते हैं। ये आप भी जानते हैं और ये सारे जानते हैं। इसलिए हम जो खबरदार कर रहे हैं उसको ऐसा इजी नहीं लेना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस खतरे को महसूस करते हुए कोई फैसला करना चाहिए। बिल्कुल सही। बराबर के इख्तियारात देने चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए इंतखाबात में सबका। यानी आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। जी हाँ, जी हाँ। ये नहीं होना चाहिए ना कि एक इलाके में अगर खतरा है और वो लोग बाहर निकल के तो मुहिम भी नहीं चला सक रहे और दूसरी तरफ आप कहे कि इलेक्शन हो गए। हर तरफ एक जैसा सलूक करे। अच्छा, चलें ये बताइए कि नून लीग से बात कहां तक पहुंची आपकी? कोई नतीजा निकला है? वो तो निकल जाएगा ना, वो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो तो आपको मालूम है कि इस तरह सियासत में जो होता है वो बातचीत चल रही है और कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह निकल आएगा। अच्छा, अब उनको बता रहे हैं, नून लीग वालों को याद करवा रहे हैं मियां साहिबाल को कि ये याद रखे जरा, थोड़ा वो अपनी याददाश्त ताज़ा करे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खजल हो रहे सो तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रौला पा रहे सो। मौलाना साहब, कोई सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत चल रही है उनके साथ? हो जाएगा, जाहिर है इसी तरह है, हो जाएगा, सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। मौलाना साहब, पहले तो सियासी जमातें अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा करती थी, अब ज्यादा जोर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर दिया जाता है। अरे तुम्हारे जैसे लड़के इधर उधर ताका जाकी करने के लिए सूखा तौलिया छत पे डालने चले जाते। मौलाना साहब, ये मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप सवाल ही फजूल कर रहे हो। क्यों? देखो, सियासत में ये नहीं होता कि हर जमात जो है, हर पार्टी अपना अपना इलेक्शन लड़ती है। जाहिर है जब ज्यादा पार्टियां मैदान में होती है तो वो आपस में इल्हाक भी करती है, सीट एडजस्टमेंट भी करती है। इस तरह की सूरत हाल दुनिया में हर जगह होती है। मगर मौलाना साहब, आप भी मुर्सी सियासत को फरोग दे रहे हैं। आपने अपने भाई और 2 बेटों को
टिकट देकर उन्हें एडजस्ट किया है इस इंतखाब के लिए। ओ बताएं मौलाना साहब, इस तरह के लड़के क्या करते हैं? डॉक्टर की दुकान पे इंजेक्शन किसी और को लग रहा होता है, ऐसे लड़के पास इस तरह मुंह बना के खड़े होते हैं। देखो फरीद, बात यह है कि वो रूसी सियासत को उस वक्त फरोग दिया जाता है जब एक बच्चा उस सहल ही ना हो तो उसको जानबूझ के सिर्फ अपनी ताकत के जोर पे सियासत में घुसेड़ा जाए या उसे इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए। जी। अगर एक बच्चा खुद अहल है और आप समझते हैं कि ये काबिल आदमी है, ये इलाके की खिदमत करेगा, ये मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेगा, तो फिर आपको कैसे रोक सकते हैं उसे? आपको नहीं रोकना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। मगर मेरा सवाल फिर वही है, आप मोरसी सियासत को क्यों फरोग दे रहे हैं? मेरा जवाब फिर वही है, तुम्हारे जैसे दूल्हे शादी वाले दिन दुल्हन को मुतासर करने के लिए कह देते हैं मैंने खाना नहीं खाना, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और फिर उजला और रूसी में अपने साथ साथ दुल्हन का दूध का गिलास भी पी जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरा ख्याल है बिल्ली है और चूहों ने लटा के मारा इसको। मुझे लगता है बोरियां सीने वाला सूआ है। और थैले भाई मूंगफली से दाना निकला और वो लाल छिलका नहीं उतरा इसका। मेरा ख्याल है कब्रिस्तान दे जो बिजू फड़ के लेंदा है। अच्छा चलो तारुफ तो कराओ ना, कौन साहब है ये? जनाब मेरा ख्याल है बिल्ली है और चूहों ने लटा के मारा इसको। मुझे लगता है बोरियां सीने वाला सूआ है। और थैले भाई मूंगफली से दाना निकला और वो लाल छिलका नहीं उतरा इसका। मेरा ख्याल है कब्रिस्तान दे जो बिजू फड़ के लेंदा है। मेरा ख्याल खून देना आया सी, एक बोतल उन्होंने 4 कर ली। ओए सारा दिन हो कुछ ही कर दे या बच्चों की रोजी भी कमाते हो? बोलिया भी है। इनके बच्चों की यही रोजी है। अच्छा जी। ये को दुनिया अखबार में मुन्नू भाई नहीं लगे हुए। ये मेरे बड़े प्यारे फ्रेंड हैं, एक दफ्तर में माशाल्लाह 18वें ग्रेड के अफसर हैं। हाँ जी, और पता लगा जी? सॉरी सर, सॉरी। माफी मांग लो वरना ये चलते हुए बंदे की भी कमीज टोक लेते हैं। माफी चाहते सरकार, मेरे को तो है ही कोई मेरे तो दोस्त हैं इसलिए मैं फ्री हो जाता हूँ। असल में मुजफ्फर साहब जो है ना जी, ये रहते हैं इमामिया कॉलोनी के पास। अच्छा अच्छा। मैं इसलिए इनको इधर लेके आया हूँ कि ये जब भी घर से दफ्तर जाते हैं तो इनकी ये हालत हो जाती है। अच्छा। दफ्तर का अमला इनको पहचानने से इनकार कर देता है। अच्छा। जब बेचारे मुंह शूत हो गए कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर इनकी अफसरी शुरू होती है। उसके बाद जब दफ्तर से घर पहुंचते हैं तो फिर यही हालत हो जाती है, बच्चे पहचानने से इनकार कर देते हैं। पिछली जुमरात नूं तो मैं घर गया, ताड़ी पर जाई ने दरवाजा खोलिया तो मैनू 10 का नोट फड़ा के दरवाजा बंद कर दिता है। क्यों जी? अजीजी सॉरी, हम भी नहीं इसे पहचाने थे, मैं समझा अजीजी को कान में फेरने के लिए लाया। यार इतनी बुरी हालत है उस इलाके की, और सिर्फ उस इलाके की नहीं, इमामिया कॉलोनी के पास एक फ्लाईओवर बन रहा है। जी बिल्कुल सर। मई के महीने से शुरू हुआ है और अभी तक वो तैयार नहीं हो सका। वैसे तो जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अब 15 जनवरी का उनको टारगेट दिया हुआ है। अल्लाह करे बन जाए, मगर अभी सूरत हाल वहां ऐसी नहीं है कि 15 जनवरी को भी खुल जाएगा। और उस फ्लाईओवर की तामीर की वजह से जीटी रोड सारा परेशान हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जितने लोग भी लाहौर आने वाले और लाहौर से जाने वाले हैं ना जी, उनका ऐसा सत्यानाश हुआ है इस वक्त। कल हमारे अपना जो टीम के हैं गटअप आर्टिस्ट अमरान नवाब साहब, जिनका माशाल्लाह कच्चे अखरोट जैसा मुंह है, और गुजराले गए हैं, वो भी बता रहा था कि भाजी उधर को 4 घंटे बंद रहा हूं मैं उसी ट्रैफिक में। पीछे से को 6-7 लाइनें बन जाती हैं और उधर से रास्ता सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने का, यानी एक लाइन का, और उधर गदर मचा हुआ है। अरे अपना मुजफ्फर साहब ने कहा कि भाई जी मेरा मुंह वहाओ टीवी ते नकवी साहब नू ते उन्होंने दसो
कि चंगे पले उधर के जो लोग हैं उनका ये सत्यानाश हुआ है। ये मुजफ्फर साहब 18वें ग्रेड के अफसर हैं, तो ये सरकारी साइकिल पे अपने घर जाते हैं? नहीं यार, ईमानदार आदमी अपनी मोटरसाइकिल पे जाते हैं। हाँ जी, वो तो हेलमेट जेड़ा पांदे ने इन्हां नूं खुला हुंदा है। यार को स्पीड तेज करन ते हेलमेट तो उड़ जाता है, इसलिए जाना भी इनको आहिस्ता आहिस्ता पड़ता है। हेलमेट च पतावे बाल मेरा। यार इस तरह की हमें शोखियां ना करो, आप लोगों को क्या पता है। देख नहीं रहे कि अफसर दे की हाल हो गया, लगता है कच्ची छत तो किसी ने बाला खींच लिया। और गौरी आपको नहीं पता, उधर जो हेलमेट पहनने वाले लोग ना उनके शीशे अन्ने हो जाते हैं, तो फिर हेलमेट बेचारे उतार के पीछे रखते हैं कैरियर पे, और इसी तरह मुंह निकाल के, जितना भी हो मुंह वो फिर निकाल के घर जाते हैं। गुस्सा ना करना मुजफ्फर भाई, जिन्नी देर तक वो फ्लाईओवर नहीं ना बनता तुसी अपने आप ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਪੈਨ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। और सुनाओ, अल्लाह के फजल से उनकी अपने से तगड़ी अपनी आवाज है। यार वाकई मुझे भी दोस्तों ने बताया कि बहुत बुरी हालत है वहाँ इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की वजह से, जीटी रोड जाम पड़ा रहता है। बिल्कुल देखो जी, वहाँ पे जो था ना जी रेलवे फाटक, वहाँ पे हमने खुद भी 2-3 मरतबा अपने शो में ये कहा था कि फ्लाईओवर की बेहद जरूरत है, अशाद जरूरत है। वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, जाहिर है बहुत सारे शहर हैं रास्ते में जो जाते हैं जीटी रोड की तरफ से लोग, और आते भी हैं लाहौर में। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने फ्लाईओवर शुरू किया है, मगर शुरू करा के एक एहसान अगर और करते कि उसे भी कोई 3 महीने में मुकम्मल करा देते। देखें इस वक्त कोई इसमें शक नहीं और कोई कहने में हर्ज नहीं कि मोहसिन स्पीड मशहूर हुई है। मोहसिन नकवी साहब बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, हर जगह पे वो पहुंच रहे हैं, और उनके साथ जो लोग हैं अफसरान वो बताते हैं कि 1:30, 2-2 बजे भी अपना कर रहे होते हैं विजिट मुख्तलिफ जगहों का। बड़ी अच्छी बात है, मगर जहाँ पे अशाद जरूरत है जल्दी काम करने की, वहां पे मेरा ख्याल है सबसे पहले ये आर्डर होना चाहिए था। और उन्होंने बेशुमार ऐसे फ्लाईओवर और पुल बनवाए हैं जो दिनों में बने हैं, यानी दिनों से मुराद ये कि 2-3 महीनों में वो मुकम्मल हुए। अच्छा जी दीदी साहब। हाँ यार, मोहसिन नकवी के दौरे हुकूमत में बेदियां रोड वाला नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास, फिर खालिद बट चौक अंडरपास, फिर समनाबाद अंडरपास, फिर अकबर चौक फ्लाईओवर, फिर चुंगी अमर सदू फ्लाईओवर, फिर घोड़ा चौक फ्लाईओवर, और ये सब मंसूबे जो हैं ये वक्त से पहले मुकम्मल करवाए हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी बात। मोहसिन नकवी साहब को इस हवाले से तो मैं तो सलूट पेश करता हूँ, मगर साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शाह जी खुदा दा वास्ता जी मामिया कलोनी वाला जेड़ा होवे ना जी ओवरफ्लाई, उत्थे जरा मोटरसाइकिल ते 2 चक्कर लाओ। अजीजी 7 साल से ज़ेरे इल्तवा गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया है जी। ये मंसूबा 6 साल पहले मुकम्मल होना था, लेकिन इसे मुकम्मल होने में तकरीबन 7 साल लग गए। और अकबर चौक फ्लाईओवर जिसका तुम तस्करा कर रहे हो, ये मंसूबा 10 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इसे 7 माह में मुकम्मल करवा दिया। हाँ जी, हाँ जी। और आपको पता है कि ये लाहौर का सबसे तवील फ्लाईओवर है। क्या बात है। हाँ जी, इस मंसूबे की तकमील से वादत रोड से पीको रोड का जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है ना जी, सिग्नल फ्री है ये जी, बिल्कुल सर, वो बन गया है। और इस कॉरिडोर में तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियों की आमद रफ्त रोजाना हो रही है आसानी के साथ। वाह वाह वाह। लो जी अजीज साहब, मैनू फिर इजाजत दो ते मैं घर जाके नहाना भी है, फिर गैस चली जाती है। गैस चली जाती है भाई जी, तुम चुल्हे ते बैठ के नहाते हो? बेवकूफो, पानी गर्म करांगा गैस ते तां ही नहावांगा ना। 18वां ग्रेड ते गीजर भी नहीं लगा। हाय हाय। बस मेरे वीर इस मुल्क विच ईमानदार बंदे इंज ही खज्जल होंदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੱਜਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿन ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। मोटा ते ए भी है, पर तेरा ते पट्ठा ही बैठा है। गोगे को शर्म किया कर यार। यार मैं जरा उसे छोड़ रहा हूँ, पार्किंग में बिल्ली फिर रही थी। यार अजीजी वापस आओ, कहाँ जा रहे हो? यार मैं मामिया कॉलोनी से मोड़ना करके लेके आया था। यार जो तुम बात कर रहे हो ना,
उसका निचोड़ यही है कि इंसान अगर काम करना चाहे तो उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये भी कोई मसला नहीं है कि बजट पास नहीं हो रहा और पैसे नहीं निकल रहे और वहां से ये नहीं हो रहा और वहां से उधर ये नहीं बन रहा। हाँ। देखो ना, निगरान हुकूमत है जी सर, तो इन्होंने अगर इतना काम कर लिया थोड़े से अरसे में, सही। तो जो वोट लेके आते हैं अब तो उनके लिए ये एक एग्जाम्पल बन गई। स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया, वो जिसे कहते हैं ना कि बेंचमार्क सेट कर दिया है। जी जी जी, नकवी साहब ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अब जो आएंगे ना, हाँ जी, लाजमन अवाम को चाहिए कि उनसे ये ऐसा ही स्टैंडर्ड चाहें। और मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे सिर्फ सड़कों पुलों की तामीर ही नहीं, दूसरी तरफ भी अवाम को इतने ही जोर से, इतनी ही उम्मीद से डिमांड करनी चाहिए हुक्मरान से। सही सर, मतलब बहुत से ऐसे अभी तक हमारे शहर हैं, आबादियां हैं, गांव कह लो, चलो ऐसे कस्बे बहुत से हैं जहाँ पे बेशुमार बच्चे हैं मगर वहां पे हाई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। अगर कॉलेज की डिमांड है तो कॉलेज नहीं बन रहा। आप देखो ना, पिछले सारे दौरे हुकूमत उठा के देख लो जी। यार। मैंने ये अपना शो में बताया था कि नारोवाल जैसे छोटे शहर में यूनिवर्सिटियां बन गई हुई हैं, सियालकोट में यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, और गुजरांवाला जो डिवीजनल हेड है, जी सर, मतलब हेड सिटी है जो डिवीजन का, उधर यूनिवर्सिटी नहीं है। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस सा बना के उनको टाल दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे जो छोटे शहरों में यूनिवर्सिटियां ले गए हैं, हाफिजाबाद जैसे शहर में भी, वो सियासतदानों ने रटा डाला, पूरा पूरा टेले लगाया है, सही। वो उन्होंने बनवा लिए। अब इसी तरह हर बंदे को, हर इलाके के बंदे को ये तवज्जो देनी पड़ेगी, बिल्कुल, और ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो बहाने शाने हम लगाते रहते हैं ना आवाम को कि जी बजट नहीं है, अभी पैसा नहीं है, या अभी वक्त नहीं है, या अभी पास नहीं हो रहा। हर शय पास हो जाती है। ये बंदा मगर डंडा फड़ के चढ़िया हुए ना, तो अगर इतने से अरसे में निगरान हुकूमत ने इतना काम करके बहा दिया है, तो फिर आपको और बहुत से मंसूबे जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे कि यार इन्ना दा क्यों इन्ने अरसे तो बेड़ा गर्क होया है। हाय हाय हाय, ये धुंध कितनी ज्यादा है। जी सर। और हमारे वो गुजरांवाला का जो बन रहा है मोटरवे का, वो जो लिंक रोड अटैचमेंट बन रही है, लिंक रोड, उधर वो मिनिस्टर गए होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं सूबाई बलाल अफजल, वो एक साफी को बता रहे थे कि वो कहीं धुंध में फंसे रहे हैं सारी रात, अगर वो वहां पे चेकिंग के लिए जाते हैं। जी सर, बिल्कुल देख रहे हैं कोई बैठा नहीं हुआ, सब दौड़ रहे हैं। पूरी टीम जो है मोहसिन नकवी साहब की, वो दौड़े लगा रही है, और उन्होंने रिजल्ट आपके सामने रख दिया। जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कौल है, ना खुद उसूल के खिलाफ काम करो, ना ही किसी को उसूल के खिलाफ काम करता देखकर खामोश रहो। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।